गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं आइसोटॉपिक सिग्नल। आइसोटॉपिक सिग्नल पर इससे पहले हम 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि व्हाट आर आइसोटॉपिक सिग्नल्स। जो मेन पीक के साथ छोटी छोटी पीक्स प्राप्त होती हैं हमारे को, उनको हम आइसोटॉपिक सिग्नल बोलते हैं। और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी इंटेंसिटीज़ का क्या रेशियो होगा, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा बाय टेकिंग वेरियस एग्जांपल्स। बहुत से एग्जांपल्स हमने लिए। पर्टिकुलरली हाइड्रोकार्बन्स के केस में अगर m/m+1 का रेशियो हमें पता हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग एग्जांपल्स हमने देखा कि m/m+1 रेशियो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि जो आइसोटॉप्स हैं और मेन एटम जिसका हम ले रहे हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। फिर हमने देखा कि हैलोजन्स के केस में नंबर ऑफ आइसोटॉपिक सिग्नल जो है किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ हैलोजन्स के बराबर होते हैं। सी इफ वी हैव ओनली वन हैलोजन विल गेट ओनली वन आइसोटॉपिक सिग्नल, 2 will get 2 isotopic signal, that is m+2 and m+4. If we have 3 halogen we'll get 3 isotopic signal, main m, then m+2, m+4 and m+6. and then we saw उनकी relative abundance कैसे calculate कर सकते हैं। We took examples having only 1 chlorine atom, 2 chlorine atoms, 3 chlorine atoms, and we also did some questions asked in CSIR net on this. And today we'll continue with this and we'll consider the another case of halogen, that is if bromine is present. So today we'll see if bromine is present. Okay, number of isotopic signal halogens का ध्यान ही है आपको कि is equal to number of halogens. So first let us take if only वन ब्रोमीन इज प्रेजेंट। अगर केवल एक ब्रोमीन प्रेजेंट है तो अब आपको इसके लिए देखो ध्यान है आपको कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है हमारे पास कितना होगा 79 और उसके आइसोटॉप का कितना होगा 81। अब इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, देखिए ध्यान से, रिलेटिव अबंडेंस जो है इनकी कितनी है, देखो ध्यान से, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। अगर ये मान लो हमारे पास 100% है तो ब्रोमीन 81 कितना होता है 97.5%। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अप्रॉक्सीमेटली बोथ आर इक्वल टू 100%, दैट इज वी कैन कंसिडर बोथ इक्वल टू 1:1। इफ bromine is present then both are in the ratio approximately 1:1. relative abundance will take 1:1 and that will make our calculation very easy. इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि इफ़ ओनली वन ब्रोमीन इज प्रेजेंट, तो एक ही ब्रोमीन प्रेजेंट है तो व्हाट कैन बी केस, वी विल गेट m will be due to bromine 79 and then we will get isotopic signal m+2 and it will be due to bromine 81. And because we have considered them approximately equal, that is their ratio is 1:1. That is m+2 ratio will be 1:1 if only one bromine is present. Okay, now take another example. If 2 bromine are present. Now if 2 bromine are present, we'll get one main signal, then m+2 and m+4. That is, we'll get 3 signal, m+2 and m+4. 3 signal mean 2 isotopic signal is equal to number of halogens. So m+2 and m+4. Now m will be due to bromine 79. M is due to bromine 79 and both bromine in this case will be 79 and this. If it is m+2, so one bromine, one possibility is this is 79 and another bromine is 81. Another possibility is this bromine is 81 and another bromine is 79. Now if it is m+4, then it is sure both the bromine are 81.
Okay, this is simple, very much clear to you. And calculation are very simple in this case because we have considered both as उनका जो relative abundance इतने कितना माना है 1:1. Now 1:1 means both bromines 1. In this case also 1:1. Now in this case, due to this also 1:1 plus due to this also 1:1, and in this case again 1:1. Because दोनों का जो relative abundance है it is almost same, तो what will be our ratio? Here it will be 1, 1:1 plus 1 it will be 2, and here it will also be 1. That is, in this case m is to m plus 2 is to m plus 4 ratio कितना हो जाएगा 1 is to 2 is to 1. आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं. अब आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा ये चीज़. ब्रोमीन के केस में तो बहुत ही इजी हो गई है कैलकुलेशन, बिकॉज दोनों की जो रिलेटिव अबंडेंस है दैट वी हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. नाउ सिमिलरली इफ 3 आर प्रेजेंट, तो वी विल टेक, you know how we can take, and because relative abundance is 1, so if 3 bromine are present, 4 bromine are present, we can calculate it from the Pascal triangle. Using Pascal triangle we can calculate, and you can do the calculation as well. अब बहुत अच्छी तरह. So you can say if 3 bromine atoms are present, then m is to m plus 2 is to m plus 4 is to m plus 6 ratio will be equal to 1 is to 3 is to 3 is to 1. इससे ज़्यादा हमारे काम नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि पास्कल ट्रायंगल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली इफ 4 ब्रोमीन एटम्स आर प्रेजेंट, 4 ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, देन इट विल बी 1 is to 4 is to 6 is to 4 is to 1. Done. Now say, let us take some more example. Say we have 1 chlorine and 1 bromine. See, let us take another example. This para-bromochlorobenzene. Para-bromochlorobenzene. Now we know 2 isotopes of chlorine. That is, they are chlorine 35 and chlorine 37. तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन, इनका रेशियो कितना होता है 3:1. नाउ ब्रोमीन वी हैव 2 आइसोटॉप्स, दैट इज ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81, एंड देयर रेशियो इज 1:1. इनका रेशियो हम पहले देख चुके हैं 1:1. तो बिकॉज देर आर 2 हेलोजन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो विल गेट 2 आइसोटॉपिक सिग्नल, दैट इज m आइसोटॉपिक सिग्नल m+2 and then it will be m+4. ये सिग्नल हो हमारा. तो अगर m है मान लो, तो m में क्या होगा, वी विल गेट क्लोरीन 35 and another will be bromine will be 79. But if it is m+2 can be like this, कि chlorine is 37 and another chlorine is 35. It is possibility. Another possibility is bromine is this chlorine is 37. So if chlorine is 37, bromine is 79. If chlorine is 35, then bromine is 81. These are the 2. इस लाइन लगा देता हूँ बीच में. Chlorine, bromine is this, and if it is m+4, then chlorine is 37 and this bromine will also be 81. I am sure this is clear. अब देखो relative abundance देखिए इसका. क्लोरीन 35 है, ब्रोमीन 75. तो क्लोरीन 35 के रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 3:1 हो गया ब्रोमीन के लिए. इस केस में देखो क्लोरीन 37 का कितना होता है 1, ब्रोमीन का कितना है 1:1 हो गया. और इस केस में क्लोरीन 35 का कितना होता है 3,
और ब्रोमीन के कितना हो गया 1, और इस केस में देखो 37 एंड बोथ इज टू 1:1, तो इट इज़ 3:1 प्लस इंटू 1 1 एंड 3 4 3:4:1, that is in this case the ratio will be 3:1. Similarly, you can do if 2 chlorine and 1 bromine is present, 1 chlorine and 2 bromine is present. एक बार आपको सॉल्व करना आ गया, बट रेगुलरली क्वेश्चन फ्रॉम आइसोटॉपिक पीस इज बीइंग एक्सप्लेन. इसीलिए मैंने 3 लेक्चर किए. देखो आइसोटॉपिक सिग्नल केवल डिफाइन करके नहीं छोड़ दिया, उसमें हर टाइप के एग्जांपल्स हमने किए हैं और जो क्वेश्चन किए हैं वो बता रहा हूँ. आज भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने जो 2017 में भी आया और सेम क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ. 2017 and 2019. So this is the question which was asked in June 2017 CSIR net, and it was also repeated in 2019. The same question. See, now what is this question? आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फिर उसको सॉल्व करते हैं और आपको आंसर. क्वेश्चन देखने में लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बड़ा सा लगता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है. देखो, मास फ्रेगमेंट्स ऑफ इरिडियम क्लोराइड in mass spectra shows peaks at 226, 228 and 230 if natural abundances of these elements are given. अलग अलग एलिमेंट्स की नेचुरल अबंडेंस दी हुई होती है, एंड देन इंटेंसिटीज ऑफ द पीक्स आर इन द रेशियो. आपको कैलकुलेट करना है कि इंटेंसिटीज जो है वो उन पीक्स की जो इंटेंसिटीज है वो किस रेशियो में होंगी. दिस यू हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटीज जो है पीक की किस रेशियो में होंगी हमारे पास. तो किस रेशियो में इंटेंसिटीज होंगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. देखो आपको व्हाट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर दिस इज, कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा, मैं बताता हूँ. देखो इस केस में देखो, सो हमारे पास क्या होगा, वी कैलकुलेट एम. सो इफ़ इट इज़ एम देन इरिडियम. अब इरिडियम हमें क्या दे रखा है, देखो 226. तो फॉर 226 वी हैव टू टेक इरिडियम 191 एंड chlorine will be 35. Only one possibility, this will be the peak for 226. This is the only one possibility in this case. Done. Now for m plus 2, that is 228. 228 possibility देखते हैं. तो in 228 possibility iridium can be 191 and chlorine can be 37. Or it is possible that iridium is 193 and chlorine is 35. Done. And then for m plus 4, that is 230. Again only one possibility, that iridium is 193 and chlorine is 37. अब relative abundance is given to you. You know iridium 191. तो iridium 191 relative abundance is 0.37, एक ही है, into chlorine. Chlorine 37 का relative abundance कितना दिया, 0.26. इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप, सॉल्व अपने आप करिएगा. ओके, देन iridium 191 and chlorine 1. तो iridium 191 is 0.37 into chlorine 37. Chlorine 37 is 0.26. विकल्प लिख देना. iridium 191 is 0.37. chlorine it is 74. chlorine 35 is 74. तो 0.26. ठीक है. प्लस अब iridium 193 is 0.63. ऊपर देख लीजिए आप कितना देगा, 0.63 इंटू क्लोरीन 35 विल बी 0.76. इन दोनों को आप जोड़ लीजिए. एंड देन इरिडियम 193 विल बी 0.63 एंड क्लोरीन 37 इज 0.26. तो दिस इज दिस. इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा आपके लिए यहाँ पर. ऑन व्हेन यू डू द मल्टीप्लाई करेंगे तो से मल्टीप्लाई करने के लिए आई हैव टू टेक द कैलकुलेटर विद मी. जस्ट ए मिनट, होल्ड फॉर ए मिनट, लेट मी टेक कैलकुलेटर, है ना. तो मैं कर ही देता हूँ उसका पूरा.
थोड़ा, क्योंकि फ्रैक्शंस में आंसर है तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे आया आपके लिए। ओके, जस्ट ए मिनट प्लीज़। लेट मी टेक द कैलकुलेटर एंड डू द कैलकुलेशन फॉर यू। मैं आपके लिए कैलकुलेशन, क्योंकि ऑड वैल्यूज़ हैं इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे हैं, थोड़ी ऑड हैं, तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन नहीं इसलिए कर। तो 0.37 को जब हम 0.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अराउंड 0.28, और इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यू विल गेट 0.566, और जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया 6, इट विल गेट 0.15। अब क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही हैं इसलिए मैंने कहा मल्टीप्लाई करके जोड़ के हम बता देता हूँ आपको कितना आएगा वैल्यूज़। चलो, अब ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब इन वैल्यूज़ के बाद देखो हमें कैसे देखना होगा कि ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर, देखो दिस इज़ द लीस्ट वन, दिस इज़ द मैक्सिमम वन, एंड दिस वन इज़ अगेन लेस देन दिस। तो अब इसके अंदर देखिए मैक्सिमम इज़ इन बिटवीन, मैक्सिमम इन बिटवीन में दो पॉसिबिलिटीज़ है, 100 एंड दिस इज़ 100, लेकिन this is just almost twice of this. So in this case this value is more and this is less, hence this seems to be the correct option. और वैसे आप राउंड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो इसको चीज़, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि the m will be at 49.5, then 100, and then this will be 26.6 आ जाएगा। This is how we can do the calculation direct, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू थी, ऐसे हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो होगा नहीं। वैसे करने का तरीका क्या होगा, इसको 1 मान लेंगे अपन, तो 0.566 से इसको डिवाइड कीजिए सबको, ये 1 आ जाएगा, ये उसके एक और वैल्यू आ जाएगी, ये उसके वैल्यू आ जाएगी, तो रेशियो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दिस इज़ हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन। तो विद दिस वी फिनिश द वर्क ऑफ आइसोटॉपिक सिग्नल्स। आइसोटॉपिक सिग्नल का वर्क हम ख़त्म करते हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा है आप लोगों को कि सभी वीडियोस जितने भी मैंने दिए हैं उन सबको बार बार देख के अपनी कॉपी में नोट्स बना लें। जो एग्जांपल्स मैं कर रहा हूँ उनको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लें। अगर आप एक बार देख के इनको छोड़ देंगे और इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को देखें और देख के इनको नोट्स बना लें, ताकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसको आप बहुत अच्छी तरह एग्ज़ाम में कर सकें। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।